Jai Somnaran to everyone. Welcome back to our class. So friend, today we are going to learn about Indian season. So the topic is here given seasons of India. Weather in our country remains almost the same for every 2 months. These 2 months duration is called season. So friend, we know that the weather of our country remains almost the same for every 2 months, and the time period of these 2 months is known as season. As per tradition, there are 6 seasons in India. These are Hemant, Sisir, Vasant, Grishma, Varsa, and Sharad. So friend, these are our traditional season of our country, and these are Hemant, Sisir, Vasant, Grishma, Varsa, and Sharad. There is hardly any noticeable difference in the weather between two successive seasons. So, if two seasons are taken simultaneously, then there would be only 3 seasons of the year. First, cold season, second, hot season, and third, rainy season. यानी कि अगर हम ये दोनों सीजन को एक साथ देखते हैं तो उसमें हम शायद ही कुछ डिफरेंस हम नोटिस कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ डिफरेंस हमें दिखता नहीं है। अगर हम ये दोनों जो सीजन को साथ में लेते हैं तो उससे जो पूरे साल की 3 सीजन बनती है, तो उसमें फर्स्ट जो है तो कोल्ड सीजन, सेकंड हॉट सीजन, एंड थर्ड रेनी सीजन। Changes in seasons are experienced distinctly in India. Cold weather starts with the beginning of winter. यानी कि जो कोल्ड वेदर है तो वो विंटर के साथ शुरू होती है। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस ड्यूरिंग समर, कि जब समर सीजन आती है तब तक टेम्परेचर ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, एयर गेदर्स मॉइस्चर एंड ब्रिंग्स रेन, कि जब मॉनसून होता है तब जो रेन होती है और साथ में जो मॉइस्चर है तो वो भी आता है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दिल्ली हैज डिवाइडेड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इनटू 4 सीजन्स। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये जो दिल्ली में सिचुएटेड है, तो उन्होंने इंडियन क्लाइमेट को 4 सीजन में डिवाइड किया है। So first number, cold weather season means winter season. So the time period is here given December to February. Second number, hot weather season. So it is known as summer season, and the time period of this season is March to May. Then third number, advancing monsoon. So it is known as rainy season. The time period is here given June to September. And last, retreating monsoon season. So it follows in October to November. Now friend, you can see here one diagram of season cycle. You can see here the 3 main seasons of our country, which is here given: winter, summer, and monsoon. Along with that, you can see traditional season of our country, which are here given: Hemant, Sisir, Vasant, Grishma, Varsa, and Sharad. You can also see the months of these seasons. For example, cold season falls during the month of December, January, and February. Then hot season falls during the months of March, April, and May. Then rainy season falls during the months of June, July, August, and September. And last, retreating season, so it falls during the months of October and November. Now friend, here we will learn about the seasons in detail. So first of all, we will learn about cold weather season, which is winter. So generally winter season falls during the months of December to February. In India, the 3 months duration from December to February is considered as winter. So friend, the time duration between December to February is considered as winter in our India. Sun shines vertically over the southern hemisphere between 22nd September to 21st March.
यानी कि जो इंडिया में 22 सितंबर से 21 मार्च तक जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो सन है तो वो वर्टिकली साइन होते हैं. India is situated in northern hemisphere, so it is under the influence of slant sun rays between December to February and low temperature prevails. कि इंडिया में जो दिसंबर से लेकर फरवरी तक जो सनराइज है तो वो स्लैंटली वो फॉल्स होते हैं और उसके कारण वहाँ का जो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी बहुत ही कम होता है. Winds blow from northeast direction from Central Asia. These winds are dry and cold, so the weather also remains dry and cold. कि जो भी विंड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ब्लो होते हैं तो ज़्यादातर सेंट्रल एशिया से ब्लो होते हैं और ये विंड्स ड्राई और कोल्ड होते हैं जिसके कारण वहाँ का वेदर भी वो कोल्ड और ड्राई बन जाता है. द स्काई ड्यूरिंग दिस सीजन जनरली रिमेन्स क्लियर मीन्स क्लाउडलेस. यानी कि उस वक्त जनरली जो स्काई है तो वो एकदम क्लियर बन जाता है. Northwest India remains comparatively cooler as it is far away from the sea and some part of it is a desert. यानी कि नॉर्थ वेस्ट की इंडिया में जनरली जो टेम्परेचर है तो थोड़ा कम होता है. इसके कारण वहाँ पे जो कूलर एकदम कोल्ड सा टेम्परेचर बन जाता है और वो इसलिए होता है क्योंकि वो एरिया जो समुंदर है यानी कि जो सी है तो वहाँ से दूर होता है और साथ में वो एक डेजर्ट एरिया भी होता है. During winter, this region develops high pressure and this deflects the winds. कि विंटर सीजन के दरमियान वहाँ पे हाई प्रेशर के कारण जो विंड्स है तो विंड्स वहाँ पे डिफ्लेक्ट भी होते हैं. ड्राई एंड कूल विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द हाई प्रेशर. कि वहाँ पे ड्राई और कूल विंड्स जो होते हैं तो वो हाई प्रेशर के कारण जनरेट होते हैं. These winds reduce the temperature of the places over which they blow. In Delhi, temperature often goes below 10 degrees Celsius during winter and it remains around 16 degrees Celsius in Allahabad and 18 degrees Celsius in Kolkata. यानी कि ये जो विंड्स है वो जहाँ से भी पास होते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है. जैसे कि दिल्ली की अगर बात करें तो टेम्परेचर दिल्ली में विंटर सीजन में 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है जबकि इलाहाबाद में 16 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है और कोलकाता में 18 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर हो जाता है. एट दिस टाइम द टेम्परेचर इन हिमालय इज मच लेस. मगर उस वक्त हिमालय का जो टेम्परेचर है तो बहुत ही कम हो जाता है. द January temperature of Simla, Darjeeling is around 5 डिग्री सेल्सियस. कि जनवरी मंथ में जो शिमला और दार्जिलिंग का जो टेम्परेचर है तो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है. After the snowfall in Himalayas, the cold and heavy winds rush towards the North Indian plains. As a result, this plain along with Gujarat and Rajasthan are under the grip of cold wave. यानी कि हिमालय में स्नोफॉल होने के बाद ये जो कोल्ड और हैवी विंड्स जो है तो नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स है तो उस तरफ वो आगे बढ़ते हैं जिसके कारण जो गुजरात और राजस्थान के जो लैंड एरिया है तो वहाँ पे एक कोल्ड वेव सा छा जाता है. यानी कि कोल्ड वेव वहाँ पे हो जाता है जिसके कारण वहाँ पे एटमोसफियर जो है वेदर है तो बहुत ही कम हो जाता है. यानी कि टेम्परेचर भी बहुत ही कम हो जाता है. Temperature decreases suddenly. Frost in some area disrupts the cotton crop. कि जिसके कारण जो फ्रॉड्स भी कई एरिया पे गिरते हैं जिसके कारण जो कॉटन क्रॉप है तो कॉटन क्रॉप को ज़्यादा नुकसान होता है. Temperature does not fall below freezing point during winter except for the high mountainous region because the central Himalayas obstruct the extremely cold winds coming from Central Asia and protects India from severe cold. यानी कि टेम्परेचर इतना भी डिक्रीज नहीं होता है कि जिसके कारण उसको ज़्यादा अफेक्ट हो क्योंकि उस वक्त जो हाई माउंटेनियस रीजन जो हिमालय में है तो सेंट्रल हिमालय जो है तो वो सेंट्रल एशिया से जो भी विंड्स आते हैं तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं यानी कि उसको वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं जिसके कारण इंडिया में एक सीवियर कोल्ड जो है तो उससे इंडिया को वो बचाते हैं. यानी कि एक तरह से जो सेंट्रल हिमालय थे तो वो इंडिया को एक सीवियर कोल्ड से भी बचाने में
उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। Like to know, let us know certain weather terms appearing frequently in the newspapers in India. So first of all is here given jet stream. In both hemispheres around 30-degree latitudes, very powerful winds in a pipe-shaped belt blow with high speed in the atmosphere at an altitude of 8 to 15 किलोमीटर। यानी कि दोनों हेमिस्फीयर के बीच में ये जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है तो वहाँ पे 8 टू 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो एक पावरफुल विंड्स जो ब्लो होती है, दिस विंड्स आर नोन एज जेट स्ट्रीम्स। और ये जो विंड्स है तो उसको हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। Their average velocity is about 150 km per hour, and in the central part of this wind belt, their velocity is about 400 km। यानी कि ये जो विंड से तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है तो वो 150 किलोमीटर पर आवर है, और जबकि उसके सेंट्रल पार्ट में ये जो विंड बेल्ट है तो उसके सेंट्रल पार्ट में इसकी जो वेलोसिटी है तो 400 किलोमीटर की होती है। During winter, these winds blow over the southern slopes of Himalayas, and in summer, these are stationed over peninsular India। यानी कि विंटर सीजन के दरमियान जो हिमालय के सदर्न स्लोप है तो वहाँ से वो ब्लो होते हैं, और वो बाद में जो इंडिया का पेनिनसुलर एरिया है तो वहाँ पे ये अपना एक स्टेशन रखता है। हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स हेल्प टू ब्रिंग रेन, और ये जो विंड्स की जो हाई ऑल्टीट्यूड के कारण वहाँ पे रेन भी कई बार होती है। नाउ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। Jet stream form over West Asia blows towards east and affects West Asian countries, Northwest India, Pakistan and Afghanistan। यानी कि जेट स्ट्रीम फॉर्म होने के बाद वो वेस्ट एशिया से ब्लो होते हैं और वो ईस्ट में वो आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है तो उसको वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और साथ में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है पाकिस्तान से और अफगानिस्तान में भी इसकी इफेक्ट होती है। The dust storms accompanying these disturbances leave their effect up to Bangladesh। यानी कि इस तरह से एक डस्ट स्टॉर्म जो है तो वो बांग्लादेश तक उसकी जो इफेक्ट है तो बांग्लादेश तक हम देख सकते हैं। This often creates disturbances in the pleasant winter weather of North India. Very high mountains receive snowfall and the plains receive some rain, which is useful to rabi crop। यानी कि ये जो माउंटेन्स है तो वहाँ पे स्नोफॉल के कारण कई एरिया में जो रेन है तो रेन भी होती है, और रेनफॉल जो है तो वो कई बार रबी क्रॉप के लिए भी ज़्यादा यूजफुल प्रूव होती है। This may cause unseasonal rain, locally known as Mauthu in Gujarat, which may damage crops। कि ये अनसीजनल रेन है जिसको लोकल लैंग्वेज में माउथू नाम से जानी जाती है, और इसके कारण जो गुजरात में जो क्रॉप्स होते हैं तो उसको ज़्यादा नुकसान होता है। Conditions in South India during winter are different from those in North India. South India is situated in torrid zone near the equator and has a peninsular shape. So friends, the South India's condition is different from North India during winter season because South India is situated in torrid zone near the equator and as well as it has peninsular shape. Its interior area is not very far from sea coast, so this area does not feel severe cold as the northern India during winter। यानी कि साउथ इंडिया के जो इंटीरियर पार्ट है तो वो सी कोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, उसके कारण वहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया में जो विंटर के दरमियान जो सीवियर कोल्ड को हम फील करते हैं तो वो वहाँ पे फील नहीं होता है। There is no snowfall. Temperature also does not go down very low. For example, the temperature at Kochi during January is around 26 degrees Celsius, Madurai is 25 degrees Celsius, and Chennai is 24 degrees Celsius. But the mountainous area in South India feel low temperature। यानी कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है तो वो इतना भी जो लो नहीं होता है कि जिसके कारण वहाँ पे सीवियर कोल्ड जो है तो वो हम फील कर सके, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है कोची का तो जनवरी के मंथ में भी टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस का रहता है।
मदुरई में 25 डिग्री सेल्सियस का होता है और चेन्नई में 24 डिग्री सेल्सियस का रहता है। मगर वहाँ पे जो माउंटेनियस एरिया है तो वहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस टुवर्ड्स द नॉर्थ। इन इंडिया विंटर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी प्लीजेंट एंड हेल्थी सीजन। यानी कि साउथ इंडिया से जैसे जैसे हम आगे नॉर्थ इंडिया की तरफ आगे बढ़ते हैं तो टेम्परेचर जो है तो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। और इंडिया में जो विंटर सीजन है तो एक बहुत ही प्लीजेंट और एक हेल्थी सीजन मानी जाती है। ड्यू टू लॉन्गर एंड कूलर नाइट्स, ड्यू एंड फॉग आर कॉमन इन अर्ली मॉर्निंग। डे इज शॉर्टर एंड नाइट इज लॉन्गर। कि जो विंटर के दरमियान इंडिया में जो नाइट्स है तो वो ज़्यादा लॉन्ग होती है और कूलर होती है। साथ में ड्यू और फॉग भी हम जनरली मॉर्निंग में देख सकते हैं, जिसके कारण जो डे है तो वो बहुत ही शॉर्ट होता है और जो नाइट है तो वो लॉन्ग होती है। In winter, dry winds coming from over landmass generally do not bring rain, but northeast winds coming over from Bay of Bengal contain humidity. जनरली जो ड्राई विंड से तो वो लैंड मास से वो आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण जो रैन है तो फैल ही होती है। मगर जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो होते हैं तो वो बे ऑफ बंगाल से जो ह्यूमिडिटी जो है तो वो साथ में लेकर आते हैं, यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी का कंटेंट ज़्यादा होता है। These winds give more rainfall over the कोरोमंडल कोस्ट। यानी कि ये जो विंड्स है तो इसके कारण जो कोरोमंडल कोस्ट है तो वहाँ पे रेनफॉल होता है। नॉर्थ ईस्ट गेट्स सम रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड थंडरस्टॉर्म्स। कि जो नॉर्थ ईस्ट जो है तो वहाँ पे कई इलाके में जो रेनफॉल भी होते हैं और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और थंडरस्टॉर्म्स के कारण होते हैं। This rain is very useful for the rabi crop in Punjab and Haryana. These winds give rain in Gujarat occasionally. यानी कि ये जो रेन है तो वो रबी क्रॉप के लिए पंजाब और हरियाणा में बहुत ही यूजफुल है और इसके ही कारण कई बार गुजरात में भी विंटर सीजन के दरमियान जो रेन है तो वो होती है। दिस अनसीजनल रेन इन गुजरात इज लोकली कॉल्ड मावठू। और ये जो विंटर सीजन के दरमियान जो अनसीजनल रेन होती है गुजरात में तो उसको लोकल लैंग्वेज में मावठू कहते हैं। Like to know, let us know some frequently used words in the newspapers about Indian weather. So first of all, here given El Nino. This is a Spanish word which literally means a small child. The name was given by Peruvian fishermen after the child Jesus because its impact is generally felt around Christmas. कि अल नीनो जो वर्ड है तो वो एक स्पेनिश वर्ड है कि जिसका मीनिंग स्मॉल चाइल्ड होता है। और ये जो वर्ड है तो कैरिबियन फिशरमैन ने दिया था कि जो जीसस के नाम से है, क्योंकि वो क्रिसमस के दरमियान ही उसकी इम्पैक्ट हम फील कर सकते हैं। This warm currents originates to the west of Peru along the Pacific coast in South America due to atmospheric and oceanic conditions। यानी कि ये एटमॉस्फेरिक और ओशियनिक कंडीशंस के कारण ये वार्म करंट जो है तो वो पेरू के वेस्ट से वो ओरिजिनेट्स होता है कि जो पैसिफिक कोस्ट तक साउथ अमेरिका के वो हम फील कर सकते हैं। This current flows westwards and its impact is felt up to India। और ये जो करंट है तो वेस्टवर्ड्स तक वो आगे फ्लो होता है और इसकी इम्पैक्ट जो है इसकी जो इफेक्ट है तो इंडिया तक हम फील कर सकते हैं। The El Nino phenomena takes place occasionally. Whenever it takes place, changes occur in the duration of monsoon and amount of rainfall in India। कि ये जो अल नीनो फेनोमेना जो है तो ऑकेजनली वो ओरिजिनेट होता है और जब भी ये आता है तो उस वक्त जो मॉनसून के जो ड्यूरेशन है तो उसमें चेंजेस आते हैं। साथ में जो रेनफॉल है इंडिया में तो उसकी अमाउंट भी कई बार बढ़ जाती है तो कई बार कम हो जाती है। ITCZ means Intertropical Convergence Zone। A large low pressure area develops over the equator where the trade winds convergence। यानी कि विंड्स का एक लार्ज लो प्रेशर जो है तो वो इक्वेटर के ऊपर से वो डेवलप होता है कि जो ट्रेड विंड से बना हुआ होता है। इट इज कॉल्ड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। द ट्रेड विंड्स राइज अपवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ एयर करंट्स।
In July, this convergence zone is stationed over 20 डिग्री to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये जो जुलाई मंथ के दरमियान ये जो कन्वर्जेंस जोन है तो वो 20 डिग्री to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर वो स्टेशन यानी कि वो वहाँ पे स्टॉप होता है। In India, it is stable over Ganga plains due to the low pressure developed over this region. Winds generated over the oceans in southern hemisphere blow towards this area, causing rain in few parts of North India. यानी कि ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है तो वो गंगा प्लेन्स के जो ऊपर वो स्टेबल हो जाता है जिसके कारण वहाँ पे लो प्रेशर बनता है और लो प्रेशर बनने के कारण जो विंड से जनरेट होते हैं तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में वो फ्लो होते हैं जिसके कारण नॉर्थ इंडिया के कई पार्ट में रेन होती है। During colder season, the convergence zone shifts further south, so the winds change their direction to northeast. कि ये जो कोल्डर सीजन के दरमियान जो कन्वर्जेंस जोन से तो वो शिफ्ट होकर साउथ में वो आगे बढ़ती है और जिसके कारण जो विंड्स है तो वो विंड्स की डायरेक्शन भी चेंज होती है कि चेंज होकर वो नॉर्थ ईस्ट में वो विंड्स की डायरेक्शन आगे बढ़ती है। Warm weather season means summer season, which is also known as the Christmas season, and it falls during the months of March to May. In India, the warm and dry season between March to May is called summer. During this period, the sun rays fall vertically, shifting from south to north gradually, and the landmass becomes warmer. यानी कि ये जो टाइम है तो उस वक्त जो सनराइज है तो वर्टिकली वो फॉल्स होते हैं कि जो साउथ से लेकर नॉर्थ तक वो ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं तो उस वक्त जो लैंडमास है तो वो ज़्यादा वार्म हो जाती है। Temperature increases continuously. The month of March is the hottest month in the southern India. कि जो मार्च मंथ है तो वो सदर्न इंडिया में एक हॉटेस्ट मंथ माना जाता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर उस वक्त बहुत ही बढ़ गया होता है। टेम्परेचर एक्सीड्स 40 डिग्री एट मैनी प्लेसेस क्योंकि उस वक्त वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है तो 40 डिग्री के आसपास या उससे भी आगे आगे चला जाता है। Central and Northwest India experiences maximum temperature during April and May. यानी कि जो सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो अप्रैल और मई मंथ में ज़्यादा टेम्परेचर होता है जबकि सदर्न इंडिया में टेम्परेचर कब ज़्यादा होता है तो वो मार्च मंथ में ज़्यादा होता है। At some places, the temperature reaches around 45 डिग्री सेल्सियस to 50 डिग्री सेल्सियस क्योंकि उस वक्त कई ऐसे भी प्लेसेस होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है तो 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। Thus, entire nation experiences very high temperature during summer due to the altitude of peninsula and the plateau. The summer in South India is little mild. यानी कि यहाँ पे जो पेनिनसुला और प्लेट्यू जो है तो वहाँ पे ऑल्टीट्यूड के कारण जो समर सीजन साउथ इंडिया में थोड़ा सा जो लिटिल माइल्ड हम कह सकते हैं यानी कि इतना भी कठिन वहाँ पे समर सीजन नहीं होता है कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया। द टेम्परेचर हियर रिमेन्स लो यानी कि जो नॉर्थ इंडिया के कंपेयर में ये टेम्परेचर साउथ इंडिया में कम होता है। While the temperature in Delhi and Allahabad is 34 degrees Celsius, it is 30 degrees Celsius at Madurai and 27 degrees Celsius at Bengaluru। जबकि जो दिल्ली और इलाहाबाद में जो टेम्परेचर है तो 34 डिग्री सेल्सियस होता है, मदुरई में 30 डिग्री सेल्सियस होता है और बेंगलुरु में 27 डिग्री सेल्सियस होती है। Thus, physical features and seas seem to have dominating effects on the temperature in south। तो इस तरह से वहाँ की जो फिजिकल फीचर्स और साथ में वहाँ पे जो सी जो है तो उसके डोमिनेट इफेक्ट्स के कारण जो साउथ में टेम्परेचर है तो वो कम होता है। Like to know nor'wester, the low pressure pocket over north and northeast India is spread up to Bihar, due to which some parts of Odisha and Jharkhand become more hot occasionally। यानी कि जो लो प्रेशर बना हुआ होता है तो वो लो प्रेशर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर वो बिहार तक वो स्प्रेड हुआ होता है जिसके कारण उड़ीसा और झारखंड के कुछ हिस्से जो है तो वो ज़्यादा हॉट रहते हैं।
It is known as nor'wester. These winds are known as काल बैसाखी locally and cause much damage in eastern India. कि ये जो winds है तो उसको लोकल लैंग्वेज में काल बैसाखी भी कहते हैं, जिसके कारण जो ईस्टर्न इंडिया में जो डैमेज है तो वो डैमेज का एक कारण यानी कि एक रीजन माना जाता है. Lu. In the arid regions of west and northwest India, sandstorms or thunderstorms are common. In summer, especially in May, very hot winds blow over North India, which are known as Lu. कि जो एरिड रीजन से खास करके जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, तो वहाँ पे जो सैंडस्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म जो है तो वहाँ पे कॉमन है. और समर सीजन में स्पेशली मई मंथ में जो विंड है तो वो ज़्यादा हॉट रहते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया से वो आगे बढ़ते हैं जिसको लू कहते हैं. ड्यू टू द एक्सेसिव हीट मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाई. कि ये जो एक्सेसिव हीट के कारण ज़्यादा हॉट सीजन के कारण कई लोगों की और एनिमल्स की भी डेथ होती है. During this season, tropical cyclones develop over Bay of Bengal and over Arabian Sea, advance towards coastal area and cause devastating effects over coastal regions. और इस सीजन के दरमियान जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है तो वो डेवलप होता है, जिसके कारण जो कोस्टल एरिया थे तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है और कोस्टल रीजन में भी उसकी इफेक्ट जो है तो ज़्यादा होती है. Most of the country experiences hot and dry weather during summer. Most of the places do not receive any rain in this season, but sometimes the Malabar coast gets some rain, which helps the mango crop. कि कई रीजन्स ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे रेन है तो वो होती ही नहीं है, मगर कई रीजन ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे जो रेन है तो जो समर सीजन में होती है. खास करके जो मालाबार कोस्ट है तो वहाँ पे रेन ज़्यादा होती है कि जो मैंगो क्रॉप के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होती है. So it is called आम्रवृष्टि. This is useful to mango and coffee crops. और ये जो समर सीजन में वहाँ पे जो रेन होती है जिसको आम्रवृष्टि भी कहते हैं और वो मैंगो और कॉफी क्रॉप्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल है.